Let us go ahead with more questions on magnetism. An iron rod, an iron rod, जो मैं आपको फेंक के मारूंगा अगर आपने मोबाइल नहीं रखा तो, an iron rod of volume 10 power minus 4 meter cube and relative permeability 1000 is placed inside a long solenoid. ओके तो आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 10 पावर माइनस 4 मीटर क्यूब. You have iron rod with volume 10 power minus 4 meter cube and relative permeability mu r की वैल्यू आपको दी है 1000 is placed inside a long solenoid. So you have a long solenoid and wound with 5 turns per centimeter. Turns per centimeter मतलब small n होता है. You need to pay attention here. Small n that is 5 turns per centimeter. Per centimeter को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो you will have turns पर सेंटीमीटर. अगर इसको मीटर में करना है 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मीटर्स 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 2 so it is 500 turns per meter. Okay, so you have small n as 500. आगे if a current of 0.5 ampere, if a current of 0.5 ampere is passed through the solenoid, then the magnetic moment of the rod is. So how do you find out magnetic moment of the rod? What is the magnetic moment of the rod? What is the formula for magnetic moment? Magnetic moment का formula क्या था? Yes, you have volume. What was the magnetic moment of a current carrying loop? NIA. NIA. Very good. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आप फाइंड करोगे क्योंकि वॉल्यूम दिया है तो मैग्नेटिक मोमेंट m, इसको m से डिनोट करो या इफ यू वांट यू कैन डिनोट बाय म्यू. तो म्यू इज इक्वल टू करंट इनटू वॉल्यूम I इनटू V. राइट? करेक्ट और नॉट? सही है नहीं है? व्हाट इज फिर अगर ऐसे ही करना था तो व्हाई डू दे गिव यू सो मेनी पैरामीटर? सीधा I इनटू V करो, खत्म करो. राइट? So what is to be done here is, first of all, you need to know how to find out mu value. If it is I into V, अगर ये I into V होता तो यूनिट्स देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं होता, एम्पियर मीटर क्यूब होता. करेक्ट? देन what will you do? कैसे फाइंड करोगे? How to find out magnetic moment? So, by the way, वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था, which was not correct, you should know in some books वो ऐसा लिखते हैं dipole moment is I into V. That is not a current. This is I told you कि some books magnetization के लिए they will be using I. हाँ तो ये confusion create नहीं होना चाहिए. You should know magnetization of the sample mz is magnetic moment per unit volume. Therefore डाइपोल मोमेंट इज वॉल्यूम इनटू मैग्नेटाइजेशन. किसी किसी बुक में इसको I से डिनोट किया है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. दैट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, नॉट करंट. ओके, नाउ हमारा टास्क रह गया, वॉल्यूम तो पता है, mz फाइंड करना है. हाउ डू यू फाइंड आउट mz? डू यू रिमेंबर? अब आपके पास जो कुछ भी वैल्यू है, आपके पास n है और आपके पास करंट है, तो आपको h मिल जाएगा. h इज n इंटू I. तो n कितना है आपके पास? 500. करंट कितना दिया आपके पास? 0.5. व्हाट इज 500 इंटू 0.5? करेक्ट? तो 0.5 मतलब तो 500 का हाफ 250. तो यू हैव h की वैल्यू 250. देन डू यू रिमेंबर B was mu h. Do you remember this was mu 0 mu r h? Do you know what is mu r? 1000. Do you know what is mu 0? 4 pi into 10 power minus 7 into ये 1000 आ गया into h की वैल्यू कितनी है? 250. अब ये 1000
250 into 4 is again 1000. तो 10 पावर 6 और ये एक 10 पावर माइनस 7 है, तो 10 पावर माइनस 1 बचेगा और ये आ जाएगा पाई। तो पाई इज 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब 0.314। ये आ गया आपके पास बी का वैल्यू, राइट। तो अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था मैग्नेटाइजेशन इनटू वॉल्यूम। तो हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटाइजेशन नाउ? हाउ डू यू फाइंड मैग्नेटाइजेशन? इसकी जरूरत ही नहीं थी इन रियलिटी। हाउ डू यू डिफाइन ससेप्टिबिलिटी? mz by h, mz by h. Do you know h? Yes. Can you find out mz? Can you find out mz? How do you define susceptibility? What is the formula for alternate formula for susceptibility? Jago, 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 jago. Susceptibility was in terms of relative permeability पूछ रहा हूं मैं. What is susceptibility in terms of relative permeability? Formula से याद नहीं है. Look, pay attention. No problem. If you don't remember, no worries. Total magnetic induction comes from material and comes from current. मटेरियल का जो होता है वो आप लिखते हो μ0 mz, इसका आप लिखते हो μ0 ni, फिर आप μ0 निकालते हो कॉमन, फिर आप लिखते हो mz प्लस ni और ni होता है h, तो यू राइट डाउन μ0 mz प्लस h, फिर आप ये डिफाइन करते हो यहाँ पे दिस थिंग, तो यहां से आपको मिल जाएगा h या फिर mz, जो भी आपको करना हो। mz यू कैन पुट chi h, तो यू विल पुट chi into h प्लस h, तो ये आपको मिलेगा यहां से h कॉमन निकालोगे तो chi प्लस 1, इसको आप बोलते हो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, करेक्ट। तो अगर आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है तो यू शुड नो ये chi, मैंने अभी अभी बताया, I just told you that 1 plus chi is relative permeability mu r. So 1 plus chi is mu r. Therefore chi is mu r minus 1. Mu r कितना? 1000. 1 कितना? 999. तो mz कितना मिलेगा आपको? mz आपको मिलेगा 999 into h, और h कितना था आपके पास? 250. इसको मैं रफली 1000 लेने वाला हूँ, डजंट मैटर, 999 इज 1000, रफली 1000, अप्रोक्सीमेटली 1000 और ये 250, तो ये आ गया 25 into 10 पावर 4, तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट m is equal to मैग्नेटाइजेशन into वॉल्यूम 25 into 10 पावर 4, और वॉल्यूम कितना है? 10 पावर कैंसल, तो कितना मिला? 25 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो जस्ट अ क्विक रिकैप अगेन, आपके पास एक आयरन रॉड था जिसका वॉल्यूम आपको दिया था 10 पर -4 मीटर क्यूब, रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया है 1000 का, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज 5, तो यू हैव नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर 500, करेक्ट। करंट दिया है 0.5 का, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड। मैग्नेटिक मोमेंट इज वॉल्यूम इनटू मैग्नेटाइजेशन, बट मैग्नेटाइजेशन चाहिए तो हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नेटाइजेशन? यू नो मैग्नेटाइजेशन के लिए chi into h, बट h is n into I, इसलिए पहले h फाइंड करके रख दिया, आ गया। बट chi you don't know, but chi you can find from relative permeability, 1 plus chi is mu r, तो chi is mu r minus 1, 1000 minus 1 is 999, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1000 ही लेने वाला हूँ, रफली, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल होंगे हमारे, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि इसको आप रफली 1000 ही ले लो, तो आपको mz मिल गया 25 to 10 power 4, so put mz and put volume, you get answer as 25, simple. Next question, a coil carrying current I has radius r and number of turns is n, it is rewound so that the radius of the new coil is r by 4 and it carries the current of I. करंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसको रिवाउंड करके उसका रेडियस 1/4 कर दिया है। So
ऑफ कोर्स यू शुड नो, अगर आपने रेडियस 1/4 किया तो नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स हो जाएंगे। इफ यू हैव नंबर ऑफ टर्न्स इनिशियल एस एन, रेडियस आर, रेडियस कम कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। अगर रेडियस 1/4 हुआ तो नंबर ऑफ टर्न्स 4n हो जाएगा न्यू केस में, राइट। आई विल आल्सो प्रूव दैट, बट यू नीड टू नो दिस। देन यू शुड नो, अगर आपने रेडियस 1/3 किया तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 3n। अगर आपने रेडियस हाफ कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 2n। So this is what you need to know. The ratio of magnetic moment of the new coil to that of original, मतलब M2/M1 का रेशियो पूछा है। सबसे पहले you should remember magnetic moment is for the first coil is NIA, number of turns, N1 current और area। करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट इज सेम, एरिया चेंज होगा क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो ये आपको मिलेगा N1 I पाई आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट केस। अब जब रिबाउंड किया है, रेडियस आपने बेसिकली 1/4 कर दिया, तो यू शुड नो नंबर ऑफ टर्न्स इन द फर्स्ट केस into 2 pi r. Circular coil has some circumference, so 2 pi r into number of turns. Okay, then this is equal to N2 2 pi r by 4। जिनको नहीं समझ में वापस बताता हूं। What is n? Number of turns. What is 2 pi r? Circumference, right? पहले केस में अगर कॉइल में n1 नंबर ऑफ टर्न्स है विथ रेडियस r, और दूसरे केस में अगर, मतलब बेसिकली लेंथ इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि लेंथ इन केस 1 इक्वल टू लेंथ इन केस 2। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों केसेस में वायर तो सेम ही यूज किया ना आपने। पहले स्ट्रेट वायर लिया, उसको आपने क्या किया, टर्न्स दे दिए, फिर आपने वापस उसको खोल के रिबाउंड किया, तो आप बाद में वापस उसको रिबाउंड कर रहे हो, तो लेंथ तो सेम होगा क्योंकि वायर क्या था, सेम। तो लेंथ इन केस 1 इक्वल टू लेंथ इन केस 2। पहले केस में लेंथ को क्या किया आपने, सर्कुलर शेप दिया, तो 2 पाई आर। अगर सिंगल टर्न होता तो सिर्फ 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे कितने टर्न्स थे, n1, करेक्ट। देन दूसरे केस में you have 2 pi r by 4. Why r by 4? Because now new radius is r by 4, or n2 is number of turns, right? Good. So what you will get here is, look, 2 pi गया, r भी गया, तो n1 equal to n2 by 4, मतलब n2 equal to 4n1। मैंने यही बताया था आपको, अगर रेडियस 1/4 हो तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 4 टाइम्स, राइट। गुड। तो M2 न्यू केस का डायपोल मोमेंट विल बी N2I और A2, बट N2 इज 4 टाइम्स ऑफ N1, इट इज 4 टाइम्स ऑफ N1, तो इट इज 4 टाइम्स ऑफ N1। I तो I है, A2 is जल्दी बताओ, पाई R2 स्क्वायर, बट व्हाट इज R2? R by 4, तो ये आएगा पाई r by 4 का स्क्वायर। तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ N1I पाई r स्क्वायर बाय 16, 1 जा एंड 4 जा, राइट। तो देन आपको पूछा M2 by M1, तो दोनों को डिवाइड कर लो। देयरफॉर M2 by M1 इज इक्वल टू, M2 क्या है, N1I पाई r स्क्वायर बाय 4, N1I पाई r स्क्वायर बाय 4, और M1 क्या है, N1I पाई r स्क्वायर, N1I पाई r स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, दैट इज 1/4 ऑप्शन नंबर C। Ratio of magnetic intensities for an axial point and a point on broad side on position at equal distance d from the center of the magnet will be, or the magnetic field at a distance d for a short bar magnet in longitudinal and transverse position are in the ratio। Okay, तो कुछ नहीं है,
एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में एक तो पॉइंट आपको एक्सियल बता ही दिया है। सो यू हैव, लेट अस से दिस एज द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, राइट। ये नैरो साइड होता है मैग्नेट का, और ऊपर वाला साइड जो है, ऊपर का फेस इज ब्रॉड साइड। तो जब आपको बोला होता है यहाँ पे एक्सियल पॉइंट, मतलब पहले तो बता ही दिया कि एक्सियल पॉइंट है, गुड। तो यू हैव पॉइंट पी हियर, देन एंड अ पॉइंट ऑन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड मतलब अलोंग द इक्वेटर। तो ब्रॉड साइड मतलब कहाँ पूछा है आपको? अलोंग द इक्वेटर। तो एक पॉइंट है यहाँ पे पी डैश इक्वेटर पे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब दिस डिस्टेंस ऑफ एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट बोथ आर सेम, बोथ आर डी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी डी। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ऑलरेडी वी हैव डन दिस, बट वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा था, दैट इज व्हाई आई एम रीडूइंग इट। या फिर आपको ऐसा ही पूछ सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द शॉर्ट बार मैग्नेट इन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन मतलब अलोंग द लेंथ, एंड ट्रांसवर्स मतलब अलोंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है? अलोंग द लेंथ, मतलब कौन सा पॉइंट? एक्सियल। एंड ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, मतलब कौन सा पॉइंट? इक्वेटोरियल। डू यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट? म्यू 0 बाय 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू, मतलब डायपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस का क्यूब। और डू यू रिमेंबर इक्वेटोरियल पॉइंट? म्यू 0 बाय 4 पाई एम बाय डी क्यूब। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2:1। डन। तो बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल is just everything will cancel out except for 2, तो 2:1। हाँ, मतलब m की जगह पे नोटेशन जो है इट इज म्यू, यू कैन राइट इफ यू वांट। And to take the previous question, the reason was this question. Magnetic field due to short magnet at a point on its axis at a distance x from the middle of the point is 200 Gauss. Axis पे point, magnetic field is 200। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला is म्यू 0 by 4 pi 2 म्यू by d cube। ओके, ये एक्सिस पॉइंट का है। एज यू कैन सी, एक्सिस पॉइंट का जो फील्ड होता है ये इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपैरिजन में ट्वाइस होता है। You can see it is only a difference of 2. So you can see B axis is 2 times of B equator, यहीं पे लिखा है। या फिर आप बोल सकते हो कि B equator is B axis by 2। इक्वेटर पे सेम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड is half of axial, right? अब the magnetic field at a point on the neutral axis मतलब परपेंडिकुलर इक्वेटर। तो न्यूट्रल एक्सिस मतलब इक्वेटर, ये पता होना चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है इक्वेटर। ओके, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिडल ऑफ द मैग्नेट इज, आपको एक्सिस पे कितना दिया है? 200। कहां पूछा है? इक्वेटर पे। एक्सिस पे डिस्टेंस था x, इक्वेटर पे डिस्टेंस है x, तो क्या यूज करोगे? बी इक्वेटर इज हाफ ऑफ एक्सिस, एक्सिस पे कितना? 200, तो यहाँ पे कितना? 100. That was the reason that I took previous question. So B equator, if the distance is same, of course, is B axis by 2. So 200 by 2 is 100 Gauss. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और न्यूट्रल एक्सिस मतलब इक्वेटर। A bar magnet of length 3 centimeter has points A and B along its axis at a distance of 24 and 48 centimeter on the opposite sides. Ratio of magnetic fields at these points will be. So you have a bar magnet. There is a point A at a distance of 24, मतलब x या फिर D it is 24, और दूसरा point है B, its distance is 48. Then they are asking you what is the ratio of magnetic fields at this point. So how do you find out ratio of magnetic fields? B equal to
B इक्वल टू एक्सिस पे B इक्वल टू d क्यूब म्यू 0/4 कांस्टेंट टू कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट क्योंकि मैग्नेट सेम है तो कांस्टेंट तो B एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d क्यूब हो गया क्वेश्चन सॉल्व तो यू विल से B1 by B2 BA by BB व्हाट इज इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पे आएगा ये DA और यहाँ आएगा DB का क्यूब तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज BB 48 एंड 24 का क्यूब 2 का क्यूब कितना 8 is to 1 ऑप्शन नंबर 1 डन next question a bar magnet has coercivity what is coercivity you know what is coercivity 4 into 10 per 3 ampere per meter एम्पियर पर मीटर बोला है मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कोर्सिविटी इट इज डिजायर्ड टू डीमैग्नेटाइज इट बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड 12 centimeter long and having 60 turns the current that should be sent through the solenoid is हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका कोर्सिविटी की वैल्यू दी है पहले तो कोर्सिविटी क्या है वो पता होना चाहिए एम्पियर पर मीटर आपने कहां देखा था ये एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजेशन और एक जगह पे देखा था डू यू रिमेम्बर समथिंग कॉल्ड एज H N into I N was number of turns per unit length H if you remember was N into I N was number of turns per unit length ओके 2 पाई आर लिखते हो बाद में आप ठीक है ये होता है एम्पियर ये होता है मीटर तो H इज एम्पियर पर मीटर तो ये जो वर्ड है ना दिस इज नथिंग बट H तो यू शुड फर्स्ट नो दिस कोर्सिविटी इज नथिंग बट H आपको H की वैल्यू दे दी है डायरेक्टली 4 into 10 power 3 एम्पियर पर मीटर इट इज डिजायर टू डीमैग्नेटाइज इट बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है by inserting it inside a solenoid आपके पास एक सोलेनॉइड है you have a solenoid और उसका लेंथ है 12 centimeter long you have a bar magnet and you want to demagnetize that bar magnet इसके लिए आप क्या करोगे इस बार मैग्नेट को इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे राइट और ये जो सोलेनॉइड है इसमें 60 टर्न्स है there are 60 turns not turns per unit length it is having total number of turns 60 तो यहाँ पे you have number of turns as 60 so you have got this turns here अब you need to think demagnetize कैसे होगा you need to know this कैसे होगा demagnetize do you know कि जब भी आप इस कॉइल में से करंट पास करोगे तो ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अलोंग इट्स एक्सिस और अगर करंट क्लॉकवाइज है राइट तो ये फेस हो गया साउथ और वो हो गया नॉर्थ किसका करंट की मैग्नेटिक फील्ड का तो यू नीड टू नो कि ये हमेशा एक्सिस पे एक फील्ड जनरेट करेगा दिस फील्ड इज नथिंग बट फील्ड ड्यू टू करंट करेक्ट ये फील्ड ड्यू टू करंट है ये फील्ड ड्यू टू करंट अगर मैग्नेट के फील्ड को कैंसल आउट कर देता है राइट तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा कौन मैग्नेट राइट तो कैन यू नाउ थिंक ऑन दिस क्वेश्चन so you have information you have length of the solenoid you have turns you have H value and you are supposed to find out what is the current so let us begin with this question थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करके रखा it is easy first of all you need to know one thing कि बार मैग्नेट के पास H नहीं होता क्या होता है mz मैग्नेटाइजेशन क्योंकि बार मैग्नेट में आप कोई करंट नहीं पास करते तो नंबर 1 दिस इज mz नो इश्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे आपको बोला है यहाँ पे
कि आपको इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो आप इसको सोलेनोइड में रखोगे, सोलेनोइड में करंट पास करोगे, करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा BI, which they are trying to tell you कि जितना फील्ड करंट का उतना ही मैग्नेटिज्म आएगा बार मैग्नेट का, मतलब उतना ही कंट्रीब्यूशन आएगा बार मैग्नेट के मटेरियल से। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू H, जितना मैग्नेटाइजेशन उतना ही H, सिर्फ यहाँ पे दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, क्योंकि कैंसिलेशन करना है इसके लिए। तो अगर आपको इतना नहीं भी पता होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यू कैन से अच्छा एम्पियर पर मीटर H, खत्म, H इक्वल टू NI। तो I चाहिए आपको, हाउ डू यू फाइंड आउट I will be equal to H by N, I will be equal to H by N, but small n is number of turns per unit length, H upon number of turns, capital N is the number of turns per unit length, लेंथ जाएगा ऊपर, then H की वैल्यू आपको दी है 4 into 10 power 3 upon number of turns is 60, length is 12 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, राइट, 1 जा एंड 5 जा, और ये आ जाएगा आपके पास 40 by 5 is 8 एम्पियर, डन, ऑप्शन नंबर डी। A solenoid has core of a material with relative permeability 500, तो relative permeability mu r is 500। अब याद रख लेना कि जब जब आपके पास म्यू आर है तब तब आपको काय मिल जाएगा, और काय यहाँ पे आपको आएगा रफली 501, क्योंकि म्यू आर वाज 1 प्लस काय, इफ यू रिमेंबर, राइट, ओके। तो एक काम करो, काय चाहिए 499 आएगा काय, डजंट मैटर, म्यू आर -1, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रफली यू कैन टेक इट टू बी अगेन 500, तो ये 499 आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली इसको आप 500 ले सकते हो। So next time onwards, I will not do this calculation. I will directly say that mu r and chi, they are approximately same. Okay, then आगे आपको बोला है वाइंडिंग्स में करंट है, करंट का वैल्यू है 1 एम्पियर का, एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड इज 500 पर मीटर, तो स्मॉल n इज 500 पर मीटर, गुड कि डायरेक्टली ऐसा यूनिट में दिया है आपको। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल mz is हो गया, अभी तो बताया मैंने, इट इज chi into h, और chi is roughly 500, h is n into I, n कितना 500, n 500 per meter, 500 per meter, and I is 1, 500 into 500 is 5 5 25, 25 के साथ 10 पावर 4, तो 2.5 into 10 पावर 5 है ना, 25 into 10 पावर 4 is 2.5 into 10, that is 25, और 10 पावर 4 मतलब 10 पावर 5 in total, तो you will have 2.5 into 10 power 5 in total, that is option number B. Question: two circular current carrying coils of radii 3 and 6 सेंटीमीटर, आपके पास एक कॉइल है जिसका रेडियस 3 है, दूसरा कॉइल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मोर और लेस। तो R1 is 3 सेंटीमीटर एंड R2 is 6 सेंटीमीटर। आगे आपको बोला है R each equivalent to a magnetic dipole having equal magnetic moments. The current through the coils are in the ratio. Joke. They are telling you कि ये दोनों coil they are equal to a magnetic dipole having equal dipole moments. मतलब dipole moment of 1 equal to dipole moment of 2, right? और आपको पूछा है currents are in the ratio. What is mu? Current into area. तो I1 A1 equal to I2 A2 I1. This is pi R1 square. This is I2 pi R2 square pi cancel, तो I1 by I2 is equal to R2 by R1 का
square. So I1 by I2, R2 was 6, this was 3 square, that is 3 का square, that is 9, बराबर ना. 2 है ये, 6 by 3 is 2, that is 2 square is 4. तो 4:1, option number D, खत्म. That's it for today.